پاکستان امن کی کوششوں میں ایک بار پھر بازی لے گیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان اور بھارت کا کرتارپور بارڈر کھولنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ کرتارپور بارڈر کھولنے کی تجویز پر بھارتی دفتر خارجہ کا بھی اظہار تشکر۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستانی اقدام پر بھارتی خیر مقدم کو دونوں ممالک میں امن پسندوں کی فتح قرار دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ توقع ہے سرحد کی دونوں جانب امن پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پنچایتی نظام کو فروغ دے کر عدالتی مقدمات نمٹانے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کا لندن میں سیمینار سے خطاب۔ اوورسیز پاکستانی خاتون کی دہائی۔ پاکستان میں جائیداد کا مسئلہ چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا تو چیف جسٹس نے سخت نوٹس لیا۔ سالوں سے لٹکے مقدمے کو فوری حل کرانے کے احکامات دیے۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے اور پاکستان پر حقانی نیٹ ورک کی سپورٹ جیسے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ برطانیہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ۔ یومیہ 36 افراد اپنی چھت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس وقت 3,20,000 افراد شیلٹر ہومز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ منی پاکستان براڈ فورڈ میں سنی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام سنی کالج کی افتتاحی تقریب۔ رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد اور ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین کی خصوصی شرکت۔ علماء کرام اور کمیونٹی رہنما بھی بڑی تعداد میں موجود۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا۔ نواز شریف پر لگے الزامات آج تک ثابت نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے جنرل سیکریٹری اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اوورسیز MLA راجہ جاوید اقبال کی برمنگھم میں پریس کانفرنس۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے بڑھ چڑھ کر عطیات دینے کی اپیل۔ عمران خان صاحب کا جو دورہ تھا ملیشیا کا بہت کامیاب رہا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے کل جو باتیں کہیں اگر وہ ان باتوں پر پورا اترتا ہے تو عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سچی باتیں کی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ عمران صاحب آپ قدم بڑھائیں، تمام پاکستانی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملائیشیا بڑا کامیاب رہا اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ پاکستان ملائیشیا کے تعلقات اور مزید بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ملائیشیا کے کامیاب دورے پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی خوشی سے نہال۔ پاکستانی وزیر اعظم کو ملنے والی عزت و احترام نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ملائیشیا کے اوورسیز پاکستانیوں کی 92 نیوز سے گفتگو۔ مڈلینڈز برمنگھم میں منہاج القرآن کے زیر انتظام عظیم الشان سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ پاکستانی کمیونٹی کی خواتین اور بچے بھی روح پرور کانفرنس میں شریک۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ جوہانسبرگ کے علاقے میں نوری مسجد کے زیر اہتمام شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
के एजाज़ में ये महफिल रखी गई। मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आज़म बंद मौलाना अब्दुल हमीद पामर का खुसूसी खिताब मारूफ सना ख्वां मुस्तफ़ा डॉक्टर निसार अहमद मरफानी के नातिया कलाम ने समा बांधी। मॉस्को में कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद और मुकाबला हुस्न नात, कम्युनिटी की मजहबी जोशो खरोश के साथ शिरकत। हुस्न नात के मोती बिखेरने वाले सना ख्वां मुस्तफ़ा के लिए उम्रे के टिकट का ऐलान। कुवैत के पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने PIA के मनसूख शुदा रूट को जनवरी 2019 से बहाल करने का ऐलान कर दिया। बिजनेस शेड्यूल जारी। अमेरिका में थैंक्स गिविंग के त्यौहार की रौनकें उरूज पर। अमरीकी शहरी टर्की की ज़ियाफत के मज़े उड़ाने की तैयारियों में मसरूफ। सैर सपाटे और ख़रीदारी के शौकीन भी निकल पड़े। जर्मनी के शहर कोलोन में नायाब कारों का आलमी मेला सज गया। मुख्तलिफ मॉडल्स की खूबसूरत गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। विंटेज गाड़ियों के शौकीन मनपसंद गाड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। उर्दू अदब का दरख्शंदा सितारा, मुमताज़ शायरा और मुसन्निफ़ा और जमहूरी जिद्दोजहद के हवाले से नुमाया मुकाम बनाने वाली फहमीदा रियाज तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो बेहतरीन फिक्शन निगार और मुतरजम भी थीं। हुकूमत की तरफ से उन्हें सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और जाड़ा अपना रंग जमाने लगा। दीरबाला और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। लवारी टाप, अशेरी दरा, कुमराट और बिन शाही के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शजर हजर भी सफेदी में नहा गए। मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी UK से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर बॉर्डर खोलने का संगे बुनियाद रखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तानी इक़दाम पर भारतीय खैर मकदम दोनों ममालिक में अनपसंदों की फतह है। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को करतारपुर सरहदी गुज़रगाह खोलने के फैसले से पहले ही आगाह कर चुका है। अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान एक और कदम आगे बढ़ा और मुस्तहसन फैसला उठाने का फैसला। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला कर लिया। 28 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी खुलने का सबसे ज्यादा फायदा सिख कम्युनिटी को होगा। सिद्धू के दौरे पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी। हिंदुस्तान की काबीना ने जो एक तजवीज़ पहले गई थी, आपको याद होगा कि
जब ये नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे आए थे तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की थी, और उसके बाद से पाकिस्तान तो ये परसू कर रहा था। करतारपुर जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है। जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है, और उसी को हमने, हमारा जो मकसद है वो रीजन में हम पीस की बात करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हम अमन की बात करते हैं। उसी पॉलिसी को लेके हम इस पे भी आगे बढ़े। दूसरी जानिब वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, पाकिस्तान भारत को करतारपुर सरहदी गुजरगाह खोलने के फैसले से पहले ही आगाह कर चुका। जबकि पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली पर भारत से पहला मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर खारिजा की जानिब से पाकिस्तान को शुक्रिया का खत भेजा गया है। पाकिस्तानी इक़दाम पर भारतीय खैर मकदम दोनों ममालिक में अमन पसंदों की फतह है। तवक्को है सरहद की दोनों जानिब अमन पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई होगी। लंदन में सिख बरादरी ने पाकिस्तान के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से करतारपुर बॉर्डर खोलने पर दिली मसरत का इजहार किया और इसे सिख कौम के लिए एहसन इकदाम करार दिया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, सर पे मेरे तेरा हाथ वे। माजी के मारूफ क्रिकेटर्स की दोस्ती रंग ले आई। वजीर आजम इमरान खान और भारतीय सरकार के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू के माबेन किया गया वादा हकीकत का रूप धार गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने इक्तदार संभालते ही जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तानी हदूद में वाक़े सिखों के मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए करतारपुर का बॉर्डर खोलने का ऐलान किया था। सिखों की तरफ से भारतीय हुकूमत पर रोज बरोज दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार उन्होंने भी भारतीय साइड से करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया, जिस पर दोनों अतराफ बसने वाले सिख कम्युनिटी के साथ साथ दुनिया भर में भी सिख कम्युनिटी खुशी का इजहार कर रही है। पाकिस्तान सरकार ने जिहड़ा फैसला लिया बॉर्डर खोलिया वा करतारपुर साहब नूं, इंडिया के जिन्ने सारे पंजाबी आ सिख उधर जाके अपने गुरु नानक देव जी के पहली पातशाही के दर्शन कर सकणगे गुरुद्वारियां दे। भी सानू पाकिस्तान की सरकार ते पूरा मान है, तो असीं धन्नवाद करदे उन्होंने ये एडा वड्डा फैसला लिया। सारे पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान नूं साडी प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरु नानक पातशाह की लांघी दी लख लख बधाई होवे। सब तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू नूं, उस तो बाद इमरान खान नूं, फौज मुखी नूं, बाजवा साहब नूं, सारे पाकिस्तान की गौरमेंट नूं, हिंदुस्तान की गौरमेंट, सारे वर्ल्ड के सिखां नूं, हिंदुआं नूं, मुसलमानां नूं, क्रिश्चियनां नूं लख लख बधाई होवे। बहुत खुशी की गल है। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ पाकिस्तान गवर्नमेंट दे। लंदन के इलाके साउथ हॉल में रहायश पजीर जसवंत सिंह ठेकेदार ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बेहतरीन फैसला करके भारतीय हुकूमत को भी करतारपुर बॉर्डर खोलने पर मजबूर कर दिया था। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ये सिख पंथ ਲਈ बहुत बड़ी गल है। सिख कम्युनिटी का मजीद कहना था कि गुरदासपुर के लोगों की आज ईद है और वो बहुत खुश हैं। उनकी खुशी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। दुनिया भर की तरह लंदन में भी बसने वाली सिख कम्युनिटी ने भारतीय कौम की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने पर खुशी का इजहार किया है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि इससे दोनों मुल्कों के तल्लुकात दोस्ताना बनाने में अहम किरदार होगा। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम हुसैन 92 न्यूज़ लंदन।
पंचायती निज़ाम को फ़रोग़ देकर अदालती मुक़दमात निपटाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने लंदन में सेमिनार से खिताब किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून की दुहाई पाकिस्तान में अपने जायदाद का मसला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अबान की रिपोर्ट में। लंदन की तारीखी कानूनी दरसगाह ग्रेज़ में फ्यूचर ऑफ एट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने लॉ सोसाइटी ऑफ सॉलिसिटर्स एंड बैरिस्टर्स सेमिनार से भी खिताब किया। I am very upset that in case this is executed on the basis of the latest law, the international rules and practices, we, the Pakistan, may suffer quite a lot on that. तकरीब से चीफ जस्टिस के अलावा लॉ फर्म डायरेक्टर तारिक महमूद, सफदर इकबाल, जफर इकबाल और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर पीर करीम अहमद खुर्शीद ने भी खिताब किया, जिसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। इस मौका पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाली खातून रुखसाना रशीद भी दाद रसी के लिए तकरीब में पहुंच गईं, जिसके सगे भाई ने विरासती जायदाद पर कब्जा कर रखा है। चीफ जस्टिस ने रुखसाना रशीद की दरख्वास्त पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने अपने स्टाफ को सालों से लटके मुकदमे को फौरी तौर पर हल करने के अहकामात दिए। सॉलिसिटर जुबैर अवान ने भी चीफ जस्टिस की तवज्जो नीलम जहलम प्रोजेक्ट की जारी मबसूल कराई, जिस पर उन्होंने नोटिस लेने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने सेमिनार के अख्ताम पर वकला में शील्ड्स भी तकसीम की, जबकि इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब ने चीफ जस्टिस को भी यादगारी शील्ड्स पेश की। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़ लंदन। कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल रिटायर्ड नासिर जंजोह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों पर भी रोशनी डाली। इसी पर हम देखेंगे ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। नेशनल सिक्योरिटी के साबिक एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजोआ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया, जिसमें इनका कहना था कि पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क की सपोर्ट जैसे इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। इनका कहना था कि अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदार आलमी ताकतें हैं। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। तलबा से खिताब में इनका मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ होना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत में इनका कहना था, दोनों मुल्क ही एटमी हैं, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़ लंदन। जनूबी लंदन में खतरनाक आग भड़क उठी। आग ने 11 बसों को जलाकर तबाह कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जनूबी लंदन के ऑर्पिंगटन बस डिपो में पहले यके बाद दीगरे 10 धमाके सुने गए, जिसके बाद बस डिपो में शदीद आग भड़क उठी। आग के बायस डिपो में खड़ी 7 बसें जलकर तबाह हो गई, जबकि 4 बसों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया। बरतानवी हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में बेघर अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। यौमिया 36 अफराद अपनी छत से महरूम हो रहे हैं और इस वक्त 3,20,000 अफराद शेल्टर्स होम में पनाह लेने पे मजबूर हैं।
برطانیہ میں بے گھر افراد کی تعداد خطرناک حد تک تجاوز کر گئی۔ بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والے فلاحی ادارے نے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں روزانہ کی بنیاد پر 36 افراد بے گھر ہوتے ہیں، جس کے بعد رواں سال بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 3,20,000 تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سب سے زیادہ بے گھر افراد کی تعداد لندن میں ہے، تاہم یارکشائر، مڈلینڈز اور ہمبر میں بھی بے گھر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے 1 ارب 20 کروڑ پاؤنڈ کی رقم درکار ہے۔ منی پاکستان بریڈ فوڈ میں سنی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام سنی کالج کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں علماء کے علاوہ لارڈ نذیر احمد اور ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین نے خصوصی شرکت کی۔ بریڈ فوڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر مغل۔ یوں تو بریڈ فورڈ میں دینی درسگاہوں اور مساجد کی تعداد 100 سے زائد ہے، جہاں مسلمان اپنی عبادات کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس فہرست میں سنی کالج کا قیام ایک خوبصورت اضافہ ہے، جس کے ذریعے جید علماء کی زیر نگرانی اردو اور انگریزی میں قرآن و سنت، اسوہ حسنہ، احادیث مبارکہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ سنی کالج کے افتتاح کے موقع پر لارڈ نذیر احمد اور ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین نے خصوصی شرکت کی اور اس ادارے کے بانی چودھری عمران حسین کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ سنی اکیڈمی کی جو یہاں پہ تقریب ہوئی ہے، اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ انگریزی میں ایتھکس، مورلز، ویلیوز، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں، جو نبیوں کی جو کہانیاں ہیں، وہ انگریزی میں پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ بچوں کے لیے اس ایسی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک تو ان کا ایمفیسس تربیت کے اوپر ہے، مینرز کیا چیز ہے، عزت احترام کس طرح کرنا چاہیے بڑوں کا۔ Great today attending the opening ceremony of the Sunni Academy, and I've learned quite a lot. In particular, I've been very impressed by the very clear and precise syllabus, the language skills that will be applied, and allowing young people to work in an environment that will be very similar to that. علماء نے ادارے کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سنی کالج جیسے ادارے وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ یہاں کی حکومتیں بہت حد تک مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ آج بریڈ فورڈ میں، جس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے، ایک نئے خوبصورت ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ محترم جناب عمران چودھری صاحب، جو بہت بڑے مسلم ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک سنی کالج کے نام سے خوبصورت کالج بنایا، جس میں بچوں اور بچیوں کی دینی اور نظریاتی تربیت اور آداب زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو سکھائے جائیں گے۔ سنی اکیڈمی جو سنی کالج اور سنی فاؤنڈیشن کے ذیلی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں کلاسز انشاءاللہ 3 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ بریڈ فورڈ میں اپنی طرز کا یہ منفرد ادارہ ہے، جس میں پہلے تعلیم اور بعد میں تربیت دی جائے گی۔ تقریب کے آخر میں امت مسلمہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے جید علماء کی زیر نگرانی اس طرح کی دینی درسگاہوں کا قیام خوشائند اقدام ہے۔ کاربابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے جنرل سیکرٹری اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اوورسیز ایم ایل اے راجہ جاوید اقبال نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی برطانیہ میں آمد کے دوران بھاشا ڈیم فنڈز کی حمایت کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مطالبہ کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے جنرل سیکرٹری راجہ جاوید اقبال نے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ ایک محب وطن جماعت ہے اور مسلم لیگ نون پاکستان کے تمام اداروں کی دل و جان سے احترام کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے محب وطن سیاسی جماعت ہے جس کے جھنڈے تلے ملک عزیز مارز وجود میں آیا اور اسے ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دیا اور سی پیک کی بنیاد رکھ کے ملک کو معاشی ترقی کی پر گامزن کیا۔ ایم ایل اے اوورسیز راجہ جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں نے پاکستان کی خاطر پہلے بھی منگلا ڈیم کے لیے قربانیاں دیں اور آئندہ بھی پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا ملک و قوم کے لیے، خواہ وہ ڈیم ہوں، خواہ وہ ملک کی اور ترقی معاشی یا فیکٹریاں ہوں یا اس قسم کا کوئی بھی کاروبار ہو جو ملک کے
मुल्क की तरक्की में बेहतरी ला सकेगा, मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी ला सकेगा, हम उसको सराहेंगे और उसकी हमायत भी करेंगे। कश्मीरियों के हवाले से उनका कहना था कि भारत की तरफ से जारी कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद होने चाहिए। आलमी बरादरी को नोटिस लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में भारत की तरफ से बर्बरियत को बंद करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट में आलमी बरादरी भारत को मजबूर करे इस बात पे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल दरामद करके उसे यकीनी बनाए और कश्मीरियों को आज़ादी दिलाए। उनका मजीद कहना था कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान ने ओवरसीज कमीशन कायम कर दिया है और बरतानिया भर के बड़े शहरों में इसकी ब्रांचें खोली जाएंगी ताकि अवाम को रसाई हासिल हो। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वज़ीर आज़म इमरान खान के मलाइशिया के कामयाब दौरे की वजह से मलाइशिया में रहने वाले पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुरजोश और खुश नज़र आ रहे हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे जावेदुर रहमान से पाकिस्तानियों ने अपने कप्तान के बारे में मज़ीद किन जज्बात का इजहार किया है, आपको भी सुनाते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो तिजारत है ये इंशाअल्लाह बड़ी फ़रोग तक जाएगी और बहुत कामयाब होगी। जनाब इमरान खान साहब का जो दौरा था मलेशिया का बहुत कामयाब रहा और हम उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने कल जो बातें कही अगर वो उन बातों पर पूरा उतरता है तो इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान मलेशिया में तशरीफ लाए हैं, हम पाकिस्तानियों के सीने फ़ख्र से चौड़े हो गए हैं और हम कहते हैं पाकिस्तान जो उन्होंने सच्ची बातें की हैं हम उनके साथ हैं। इमरान साहब आप कदम बढ़ाएं, तमाम पाकिस्तानी आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मलेशिया के ताल्लुकात और मज़ीद बेहतर होंगे और हम यकीन दिलाते हैं जनाब इमरान खान साहब को कि हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लीगल तरीके से फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। ज़राए के मुताबिक कुवैत से PIA के मनसूख शुदा रूट दोबारा जनवरी 2019 के वस्त में बहाल हो रहे हैं। इस सिलसिले में बिजनेस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट और लाहौर के लिए हफ्ते में 2 परवाजें होंगी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में कुवैत सिविल एविएशन से भी तमाम उमूर तय पा गए हैं। शारजा, अबू धाबी, मस्कत और इराक के लिए भी परवाजें उड़ान के लिए तैयार हैं और कुछ रूट बहाल हो चुके हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि परवाजें मनसूख होने का अमल इंतहाई मुश्किल था, जिससे ना सिर्फ PIA बल्कि पाकिस्तानी भाइयों जो PIA को अव्वलीन तरजीह देते थे बहुत नुकसान से गुजरना पड़ा है। ज़राए माजरत करते हुए कहते हैं कि अब इन तमाम रूट्स को दोबारा बहाल किया जा रहा है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मिनहाजुल कुरान मिडलैंड्स बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान सालाना ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़वातीन, बच्चों और मर्द हज़रात आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शिरकत करते रहे। निज़ामत के फ़राइज़ अल्लामा अशफाक आलम ने बड़ी खूबसूरती से अदा किए। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। नहीं था किसी को जो मंज़र पे लाना नहीं था किसी। मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम के ज़ेरे इंतजाम होने वाली मिलाद कॉन्फ्रेंस में तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां मनाई गईं और अपने आप को सुन्नत रसूल पर अमली तौर पर अमल पैरा होने का तजदीद अहद भी किया गया। वो सूरत दिखाई गई है लहद में वो सूरत। इस
इस मौके पर मिनहाजुल कुरआन के ओहदेदारान अल्लामा अशफाक आलम, एजाज सिद्दीकी और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले सॉलिसिटर जाहिद चौधरी, डॉक्टर सबूर, शहजाद इकबाल का कहना था कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप मेरे महबूब को देखेंगे तो आप मुझे देखेंगे, मेरे महबूब का हुस्न मेरा हुस्न है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया। नहायत ही पुरजोश और आला क्वालिटी का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से तमाम साथियों ने इसमें शिरकत की। उलमा का खिताब, सनाए मुस्तफ़ा ने जोक तजोक इसमें शिरकत की। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए हमारे ईमान का जुज़्व कामिल है, और इसके बगैर हमारा जो ईमान है वो नामुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अल्लाह ताला इनकी एफर्ट को जो है उसमें बरकत दे। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब की 35 साल से वही मैसेज दे रहे हैं, और ये हर मुल्क में तरीके मुनाजिल कुरान के तमाम रफ़ाका कारकुनान हर मुल्क में, पूरे यूरोप में, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में वो तरीके मुनाजिल कुरान के मराकज़ में प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा जो महीना आया है, ये आज 12 रबीउल अव्वल है। तमाम साथी से मेरी गुजारिश है कि तमाम साथी मिलकर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक मनाएं, सजाएं। इसी के अंदर इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि इसी के अंदर कामयाबी है, हमारी आखिरत इसी के अंदर संवरेगी। हमें मिलाद शरीफ के प्रोग्राम भी मुनक़िद करने चाहिए, और इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को उजागर करना चाहिए, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना चाहिए। तकरीब के एहतताम पर हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रबीउल अव्वल के शुरू होते ही पूरी दुनिया में महफिल मिलाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। बरतानिया भर में सना खां के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। इसी सिलसिले में मिनहाजुल कुरान मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम एक शानदार महफिल मिलाद का इनकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आए सना खां सैयद खालिद हुसैन शाह, सैयद ताहिर शाह तोमजी, शहबाज कमर फरीदी और कारी करामत अली नईमी ने शिरकत की। इसी का अहवाल देखेंगे मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के आगाज से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखने वाले आशिकाने रसूल बरतानिया भर में बड़ी तादाद में महफिल नात ख्वानी का बंदोबस्त करते हैं। इस सिलसिले में मिनहाजुल कुरान मैनचेस्टर के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए मारूफ सना खानों ने शिरकत की। सना खानों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदियाए नात पेश किया, जिसे सुनकर हाजरीन पर वजद तारी हो गया और फिजा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान से आए मेहमानों का कहना था कि उन्हें बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो प्यार और मोहब्बत मिलता है, इससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और अपने प्यारे नबी का जिक्र करके उन्हें कल्बी सुकून मिलता है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मैनचेस्टर आज ईद उल मिलादुल नबी के पुरमसरत मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त इवेंट अरेंज किया है, जिसमें नौजवान नस्ल भरपूर शिरकत करेगी, फैमिलीज़ भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ख्वाहिश है कि सारे लोग इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन के लिए सब तशरीफ़ लाएँ और अपने कल्ब को मुनव्वर करें। एक अज़ीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारों को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और हुज़ूर शेखुल इस्लाम को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर और उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक, हिम्मत और ताकत अता फरमाए। इस मौका पर अल्लामा हाफिज अब्दुल सईद ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खिताब किया और लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर।
जोहानिसबर्ग के इलाके मेफेयर में नूरी मस्जिद के ज़ेर एहतमाम शब विलादत मुस्तफ़ा की रूह परवर महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना अब्दुल हमीद पामर ने खुसूसी खिताब किया और मारूफ सना खां मुस्तफ़ा डॉक्टर निसार अहमद मरफानी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में रहमत के फूल निछावर किए। तलावत कुरान पाक से महफिल का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना अब्दुल हमीद पामर ने रूह परवर खिताब करके आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को खूब गरमाया। मारूफ नातख़्वा हाफिज़ डॉक्टर निसार मरफानी ने अपने मखसूस अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करके आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर तारी कर दिया। इसके बाद महफिल ज़िक्र का अहतमाम किया गया, जिसमें शुरका महफिल ने ज़िक्र अज़कार और दरूद पेश करके रूहानी तस्कीन हासिल की। आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ख़ुसूसी ज़ियारत कराई गई। इस मौके पर शुरका दुरूद सलाम का विर्द करते रहे। महफिल के आखिर में लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम भी किया गया। बारह रबीउल अव्वल के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी हिज़्बुल हनाफ के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मशअल बरदार जुलूस निकाला गया, जिससे मरकजी अमीर सरपरस्त कमेटी पीर मुफ्ती सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रिजवी समेत पीर सैयद हैदर मुस्तफ़ा रिजवी, पीर मुराद रिजवी, पीर सैयद इदरीस शाह, मुफ्ती गुलाम हुसैन कादरी समेत दीगर उलमा और मशाइख ने खिताब किया। मरकजी मिलाद कमेटी हिज़्बुल अहनाफ के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मशअल बरदार जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके हज़ारों मशअलें रोशन की। मरकजी अमीर सरपरस्त आला मिलाद कमेटी की क़यादत में ये जुलूस दाता दरबार से होता हुआ रीगल चौक तक निहायत अकीदत एहतराम से पहुँचा। इस मौका पर शुरका ने हाथों में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से बैनर्स भी उठा रखे थे। पीर मुफ्ती सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रिजवी ने जुलूस के शुरका से खिताब भी किया। उनका कहना था कि सच्चा मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की हिफाजत उलमा व मशाइख अपने खून से करेंगे। इस जुलूस में हम अहद करते हैं कि कानून नामूस रिसालत और कानून ख़त्म नबूवत का हम हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और तन मन धन बाजी लगा देंगे और इसमें जो भी रुकावट डालेगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमें इस तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर पीर सैयद हैदर मुस्तफ़ा रिजवी, पीर मुराद रिजवी, पीर सैयद इदरीस शाह जंजानी, मुफ्ती गुलाम हसन कादरी समेत दीगर उलमा व मशाइख ने भी जुलूस के शुरका से खिताब किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। नाज़रीन, मुमताज़ शायरा, मुसन्निफ़ा और जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से नुमाया मकाम बनाने वाली फहमीदा रियाज तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो बेहतरीन फिक्शन निगार और मुतरजम भी थी, जबकि हुकूमत की तरफ से उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। लाहौर से देखिए इसी पर इमरान राज की रिपोर्ट। एक अहद का खात्मा हुआ और मुमताज अदबी शख्सियत फहमीदा रियाज जहाने फानी से कूच कर गईं।
उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। 28 जुलाई 1945 को मेरठ हिंदुस्तान के इल्मी अदबी घराने में पैदा होने वाली मुल्क की मुमताज शायरा फहमीदा रियाज अयूब खान के जमाने में तलबा यूनियन पर पाबंदी के खिलाफ लिखती रहीं, जबकि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद के जुर्म में उन पर 14 मुकदमात कायम हुए। फहमीदा रियाज जनरल ज़ियाउल हक की जिंदगी तक जला वतन भी रहीं। बाईस साल की उम्र में फहमीदा रियाज का पहला शेरी मजमुआ पत्थर की जुबान 1967, दूसरा मजमुआ बदन दरीदा 1973 में उनकी शादी के बाद इंग्लैंड के ज़माना क़याम में शाया हुआ, जबकि तीसरा मजमुआ कलाम धूप था। फहमीदा रियाज नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की सरबराह भी रही। फहमीदा रियाज को 2017 में ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से हेमत हेलमन अवार्ड बराए अदब, 2005 में अल मिफ्ताह अवार्ड बराए अदब व शायरी और शेख अयाज अवार्ड भी दिया गया। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। जर्मनी के शहर कोलोन में रेट्रो और नायाब कारों की दिलदादा अफराद के लिए कारों का आलमी मेला सज गया, जिसमें दुनिया भर से शायकीन इस मेले का रुख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बॉन से हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर से। कोलोन शहर में विंटेज कारों की तारीख 18वीं सदी से शुरू होती है। कोलोन शहर के मेयर हेनरिएटे रेकर का इफ्तिताही तकरीब से कहना था कि रेट्रो क्लासिक कोलोन तारीखी लिहाज से बहुत अहम है। उनका कहना था कि इससे हमारा जज्बाती लगाव है। इस मौके पर नायाब जगुआर कारों के दुनिया के सबसे बड़े क्लब जगुआर फोरम के मेंबर्स ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। Jaguar Club has a big forum which is called the Jaguar Forum, and this is the community to keep those cars alive. We meet sometimes on the fairs and we do some tours like this one now. We're on the way to Pakistan. We'll be there in 3 weeks and have a nice day and nice fun on the way. But actually we support ourselves to have these cars running, to have these cars in a good condition, and talk about the tours that we make. We talk about the places where you can get help for those old cars and keep them alive. फोरम एक शानदार विंटेज विलेज का तासुर पेश कर रहा था। यहाँ कारों की नीलामी एक स्पेशल इवेंट है जिसमें हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मनपसंद कारों को खरीद सके। इस मौके पर ऑटोमोबाइल कंपनियां, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कारों की क्लब यूनियन और विजिटर्स एक छत तले आपस में मालूमात का तबादला भी करते हैं। This is a very good opportunity for us to have possibilities for our members to join us here, join the club and have talk with us, have fun. German people, we are from Italy and Croatia, but we are here. Today it's nice, it's cool, it's full of nice car. Some are really crazy and yeah. इस मेले में कारों के शौकीन अफराद हर साल बड़ी दिलचस्पी के साथ न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर से शिरकत करते हैं। कोलोन शहर क्लासिक कारों के हवाले से जाना जाता है। नायाब और मुनफरिद कारों के शौकीन अफराद के लिए रेट्रो क्लासिक्स कोलोन से बेहतर जगह और कोई नहीं। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।